After ticking off so many amazing spots, I finally made it to Lucerne. But guess what? Some of the most exciting adventures are still waiting. In this episode, I am heading out for one of the Switzerland's most famous ridge hike in Stoos. And on my very last day, we will be checking out the mighty Rheinfall. So stick around and let's dive into the story of my final 2 days in Switzerland. Now I'm in the bus stand, so waiting for the bus to reach the railway station. So यहाँ से जो बस मिलेगा वो है बस नंबर 19 जो हमें यहाँ से रेलवे स्टेशन तक ले जाएगा। ओवरनाइट हम यहाँ पे लुसर्न पे स्टे किए आज और कल भी रहेंगे और आज हम जा रहे हैं स्टूस रीज पे ट्रैक करने के लिए। इफ़ यू सी द वेदर, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो, अगर मेरा स्विट्ज़रलैंड ट्रिप फॉलो कर रहे हो तो यू नो द वेदर हाउ इट वाज यस्टरडे इन ब्रियांस। इवन हियर ऑल्सो इट वाज क्लाउडी अंटिल इवनिंग, बट आज देखो अब पूरा ब्लू स्काई है, कहीं पे भी कोई क्लाउड नहीं है। सो आई हैव रीच द रेलवे स्टेशन। तो अभी हमारा जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 11 से छूटेगा। Today I am going alone since my friend isn't feeling well. I don't even have any mobile network. But the good part is almost every train station has free Wi-Fi, and that's more than enough to check train timings, platform numbers and even my next transport options. तो यहाँ से हमें ये 501 नंबर का बस पे जाना पड़ेगा आगे स्टूसबान तक। सो लेट्स बोर्ड द बस। Bus was so crowded that the doors just wouldn't close until a few passengers had to step down to make space. Reached the Stoos फनिकुलर स्टेशन। तो इतना भीड़ है आज, फर्स्ट ऑफ ऑल संडे है और फिर वेदर भी काफ़ी अच्छा है। The Stoos funicular is the world's steepest funicular, climbing at a crazy 110% of gradient. In just a few minutes, it takes you to the car-free mountain village of Stoos. And here is a tip. Board the first cabin for the best valley view on the way up. तो अभी हम जा रहे हैं क्लिंगेनस्टॉक केबल कार स्टेशन, फिर वहाँ से एक चेयर कार लेके ऊपर क्लिंगेनस्टॉक तक जाएंगे। From the funicular station, it's about a 10-minute uphill walk to reach the Klingenstock chairlift station. The ticket for the chairlift has to be booked online separately, but no worries. The station has free Wi-Fi, so getting it done was super easy. But the chairlift isn't the only way up. There is also a hiking trail, and if you are up for it, you can trek all the way from Stoos to the ridge. So here I am on the top of the ridge। तो एक साइड पे हम आ गए, अब यहाँ से 5-6 किलोमीटर ट्रेक करके अदर साइड ऑफ द रिज जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द एक्चुअल हाइक। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच आई स्पेंड। तो ये जो लास्ट वाला चेयर कार पे हम ऊपर आए हैं, यहाँ इस पे हाफ फेयर ट्रैवल कार्ड अप्लाई नहीं होता, तो टू एंड फ्रो आई स्पेंड 34 स्विस फ्रैंक। As soon as I step out of the chairlift station, I realize that I am standing right on a ridge with a breathtaking bird eye view and a steep drop on the other side. The trekking route is going in the direction of a beautiful blue lake lying a few hundred meters below of my current altitude. So this is the view of Lake Lucerne and you will see this all through the hike. So I'm taking some rest. अब देखो दूर दिख रहा है लुसार्न और ये जो लेक है ये लुसार्न लेक है, ये काफ़ी फैला हुआ है। तो यहाँ आने में इतना टाइम लग गया, मतलब 1.5 घंटा लग गया लुसार्न से, तो काफ़ी दूर है ये जगह।
बहुत ही अच्छा वेदर है। मतलब कल वेदर देख के लग नहीं रहा था कि आज अचानक से इट विल बी सो क्लियर, सो क्लीन। अगेन कल से वेदर ख़राब रहने वाला है एज़ पर द मेटियो स्विस ऐप। Though today the route is little crowded, you can definitely find spot along the way to enjoy the view all by yourself. You just need to step a little away from the main path. From the main route, you can take a small detour to another viewpoint, but today the place is pretty filled up. The lake view was already amazing, and then out of nowhere, some clouds rolled in. Their shadow over the lake made the scene absolutely magical. From here onwards, it's a continuous downhill journey until this point. यहाँ से फ्रेनेलस्टॉक का डिस्टेंस है 50 मिनट्स, और यहाँ से एक रोड जो सीधे नीचे जा रहा है स्टूस की तरफ, दैट विल टेक 1 आवर 10 मिनट्स। और ये वाला रोड पूरे नीचे की तरफ है, पर फ्रेनेलस्टॉक के लिए आपको काफ़ी ऊपर चढ़ाई करना पड़ेगा। अभी ये देखो पीछे बहुत ऊपर है, तो अगर कोई चाहता है तो 1 वे टिकट बुक करा के ऊपर तक आ सकते हो। फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाना मुझे लगता है ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि यहाँ से जो आगे वाला चढ़ाई है वो काफ़ी ऊपर है। It took me another 20 minutes to reach the top, and finally I got the full view of the entire lake from here. तो जो बेस्ट व्यू है वो फ्रेनेलस्टॉक से ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो यू कैन जस्ट कम टू फ्रेनेलस्टॉक, और यहाँ आके आप लेक का व्यू देख के फिर सेम केबल कार से वापस जा सकते हो। दैट विल बी अ बेटर आइडिया। और अगर आपको मेरी तरह ट्रैक करने का मतलब हॉबी है तो आप पूरा ट्रैक कर सकते हो, विच इज़ मोर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। Now it's time to head back, and this is the queue for the chairlift. After around 20 minutes, I finally got my turn to grab a seat. So back from Stoos to my hostel. So this is the hostel where I stayed for last night, and I will stay one more night. So ये है Lucerne Youth Hostel. I booked a twin room here. So yeah, that cost 237 Swiss franc including breakfast. Now it's time for a evening walk around Lucerne city center, and I hopped on a bus to get there. तो पहुंच गया सेंटर पे। तब गाड़ियाँ देख रहे हो, पता नहीं यार क्या क्या मॉडल की गाड़ियाँ दिख रहा है यहाँ पे। भाई साहब लेवल ही अलग है यहाँ का। तो चलो हम पहुँच गए चैपल ब्रिज। सो दिस इज़ द रिवर, मेन रिवर है यहाँ के, और आगे है चैपल ब्रिज, आपको दिखाता हूँ। उतना कुछ हाई फाई नहीं है, बस वुडन ब्रिज है। तो वो मेन ब्रिज है जिसे गाड़ी क्रॉस हो रहा है, और दिस इज़ फॉर पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रिवर। Chapel Bridge is right in the city center, just next to Lucerne train station. The whole area is buzzing with tourists, restaurants, and beautiful buildings that blend classic European architecture with modern amenities. There are few other walking bridges around, and the view of Chapel Bridge in the evening light was really beautiful.
I am heading towards another attraction, the Lion Monument. It's about a 15 minutes walk from the city center. On the way, I came across a beautiful church and thought of stepping in, but unfortunately it was closed. By the time I reached the Lion Monument, it was already dark. And now it's time to head back to my stay for the night. तो आज हमारा स्विट्ज़रलैंड ट्रिप का लास्ट डे है. टुडे इज़ आवर 10th डे एंड वी जस्ट लेफ्ट लुज़र्न एंड गोइंग टू ज़ुरिक. वेदर आज बहुत ख़राब है एज़ पर द वेदर प्रेडिक्शन. तो एक चीज़ बाकी रह गया था, वो था डबल डेकर ट्रेन में चढ़ना. तो अभी हम लुज़र्न से ज़ुरिक जा रहे हैं एंड वी आर इन अ सेकेंड फ्लोर ऑफ द ट्रेन. सो दिस अ डबल डेकर ट्रेन. आप देखो बच्चों के लिए खेलने की भी जगह है सामने. किड्स आर प्लेइंग. नाइस. तो इट्स अराउंड 1 आवर जर्नी. तो आज का वैसे तो कुछ प्लान नहीं है, बट आवर फ्लाइट इज़ एट अराउंड 9:30 एट नाइट. सो पूरा दिन है हमारे पास. तो वी आर प्लानिंग टू विजिट द राइन फॉल्स विच इज़ अगेन अराउंड 1 आवर अवे फ्रॉम ज़ुरिक. सो वी अराइव्ड इन ज़ुरिक HB रेलवे स्टेशन. तो यहाँ पे काफ़ी सारे लॉकर है, ये पीछे देख रहे हो. बस इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस. बस लॉकर में सामान डालो, फिर एक कियोस्क है वहाँ पे आप पे करो, बस डन. तो अभी जो हमारा टोटल सामान था वो यहाँ पे लगेज रैक में डाल दिया है एंड वी आर जस्ट कैरिंग अ स्मॉल बैकपैक एंड वी आर गोइंग फॉर राइन फॉल्स. तो ज़ुरिक से हम आ गए, ज़ुरिक HB से. तो इट टुक अराउंड 1 आवर. हमें पे करना पड़ा 12.2 स्विस फ्रैंक पर हेड आफ्टर अप्लाइंग हाफ ईयर ट्रैवल कार्ड. So this is our first glimpse of the mighty rainfall. But it's not quite the way we have seen it on social media, right? तो वी हैव सीन फ्रॉम वन साइड. इधर से व्यू इतना अच्छा आ नहीं रहा है. तो वी आर जस्ट क्रॉसिंग द रिवर टू सी द वाटरफॉल फ्रॉम द अदर साइड. The entrance of rainfall is actually through a fort, and the viewpoints aren't free. You need to pay 5.5 Swiss franc per head. But believe me, it's totally worth it for the view you are going to get. There are total 4 viewpoints, starting from the top and finally going down almost to the water level. Each spot gives you a different perspective of the waterfall, but the sheer vastness and the roar of the water will leave you speechless. तो कैसा लगा राइनफॉल कमेंट करके ज़रूर बताना. सो नाउ वी टूक अ राइड. तो यहाँ से 22 स्विस फ्रैंक दे के हम वो राइनफॉल के बीच में एक रॉक है उसके ऊपर तक जा सकते हैं. तो यहाँ पे हाफ एयर ट्रैवल कार्ड नहीं चलता. तो पर हेड 22.5 स्विस फ्रैंक हमने पे किए हैं वहाँ जाने के लिए. तो आए हैं तो जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं. ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा आएगा और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा. फर्स्ट वी हैव टू टेक द रेड बोट फ्रॉम दिस साइड टू द अदर साइड. फिर वहाँ से येलो बोट लेके जाना पड़ेगा बीच में. सो वी जस्ट क्रॉस द रिवर यूजिंग द रेड बोट. तो अभी हम वेट कर रहे हैं येलो बोट के लिए. तो यहाँ पे 4 वेराइटीज़ बोट है, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन. तो रेड इज़ जस्ट फॉर क्रॉसिंग द रिवर. तो ग्रीन में आपको आधा घंटा टाइम मिलेगा, राइनफॉल तक आपको लेके जाएगा, फिर आसपास घुमा के वापस ले आएगा. देयर इज़ अ ब्लू बोट दैट इज़ ऑल्सो सेम बट फॉर 15 मिनट्स एंड द येलो बोट विल टेक यू टू द टॉप जहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है.
तो ऑब्वियसली दैट इज़ द एक्सपेंसिव वन एंड हमने येलो वाला ही लिया है एंड वी आर जस्ट वेटिंग सो द नेक्स्ट बोट विल कम। तो ऐसा हो रहा है कि बोट एक ग्रुप ऑफ लोगों को जाके उधर छोड़ के आ रहा है, फिर नेक्स्ट बोट में उन लोगों को वापस ले रहा है और अनदर ग्रुप इज़ गोइंग टू सी फ्रॉम द व्यू पॉइंट। This is by far the best viewpoint. You are completely surrounded by the waterfall, and the view feels like a drone shot, wide and unobstructed. तो आ गया ज़ुरिक वापस। तो जो जो जगह घूमना था इस पूरे स्विट्ज़रलैंड सीरीज़ में सारे हमने घूम लिए। सो दिस इज़ माय लास्ट एपिसोड एंड राइट नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक टू ज़ुरिक एयरपोर्ट। फिर वहाँ से हमारा फ़्लाइट है बैक टू इंडिया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर कमिंग स्विट्ज़रलैंड ट्रिप यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। सो एनीवे अभी के लिए बाय, मिलते हैं और कहीं पे और कोई कंट्री में।